Okay, guys, so very good afternoon to one and all. In last classes, we were talking about L'Hopital rule, and we had done so many questions of L'Hopital rule of different variety. And that topic has been completed in the last class. Today, we'll start a new topic, Rolle's and Lagrange's mean value theorems. So the topic name is mean value theorems, and topic in this topic we will learn two mean value theorems. First is Rolle's mean value theorems and second is Lagrange's mean value theorems. So I start with my presentation. Could anybody please confirm the slide is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So first start with Rolle's theorem. There are two theorems in your syllabus, mean value theorems. Number one is Rolle's theorem and number two is Lagrange's mean value theorem. So the statement of both the theorems are very important. In fact, in examination, several times it's being asked, write down the statement of Rolle's theorem or write down the statement of Lagrange's theorem. So statement is very important. A statement is very important for another point of view as well, because if you want to evaluate the question of Rolle's theorem or Lagrange's theorem, then you should know what is the statement of these theorems. So in both point of view, the statements are very important. You should learn the statement actually. What is the statement? If there is a function fx and this fx is defined in such a way that in closed interval ab it is continuous, in open interval ab it's differentiable or derivable, and the value of function at first extreme point of the given interval is equal to value of the function at second extreme point of the given interval. That is, if interval is a to b, then f of a is equal to f of b. If these three conditions are satisfied for any function fx defined in the interval a to b, then there exists at least one value of c of x in the open interval ab such that f dash c is equal to 0. देखिए मैं स्टेटमेंट दोबारा बताता हूँ आपको. फंक्शन fx है, ये फंक्शन fx क्लोज इंटरवल a से b में डिफाइंड है. ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. नंबर वन, ये फंक्शन क्लोज इंटरवल a से b में कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट, देर इज नो ब्रेक इन दिस गिवन इंटरवल. ये फंक्शन ओपन इंटरवल a से b में थ्रू आउट डिफरेंशियबल है. डेरिवेबल को डिफरेंशियबल भी बोलते हैं हम. और इस फंक्शन का a पर वैल्यू और b पर वैल्यू सेम है. f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो फंक्शन, तो हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम हम बोलेंगे कि ओपन इंटरवल ए बी में वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, आपको ही पता है, लेकिन ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट x ऐसा ज़रूर होगा. उस x को हम c ले लेते हैं. कम से कम एक पॉइंट x ऐसा ज़रूर होगा इस इंटरवल में कि उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी. उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी.
तो अगर आपसे एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट पूछता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ रोलेस थ्योरम, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है और साथ ही साथ इसका ग्राफ भी बनाना है। वो मैं ग्राफ बताता हूँ अभी आपको। एक बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने ज़रूरी हैं फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट डिससेटिस्फाई हो रहा है तो फिर रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन, और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वेरीफाई द रोलेस थ्योरम, उसके लिए ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने ज़रूरी हैं। अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट या दो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी, वेरीफाइड नहीं होगी। और रोलेस थ्योरम वेरीफाई होने के बाद में पॉइंट सी का वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम। एफ डैश सी को ज़ीरो कर देंगे तो उन सभी सी की वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास जिसके जो ए से बी इंटरवल में होगी, और उनके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। रोलेस थ्योरम को हम ग्राफिकली समझते हैं। देखिए, ये ग्राफ है आपका। एक काम करता हूँ, मैं ग्राफ खुद बनाता हूँ, एक काम करता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई एम ड्राइंग ए ग्राफ टू द बेस्ट पॉसिबल। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसा ये एक ये फंक्शन ले लिया मैंने, ओके। और थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया इस तरह से, ऐसे ये एक्स एक्सिस पूरी है यहाँ तक, ओके। और ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ए है और ये पॉइंट फॉर एग्जांपल बी है, एंड दिस फंक्शन इज फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो आप देखिए, मैं इस रोलेस थ्योरम को ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। क्या चीज़ है, एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है जो a से b इंटरवल में डिफाइंड है। आप देख सकते हैं ये a से b इंटरवल में डिफाइंड है ग्राफ के थ्रू। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो है ग्राफिकली कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल ए बी में। कहीं पे भी इस फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं लग रहा, कोई टूटा फूटा नहीं है, सो इट इज़ थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। ये थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है। ये कैसे पता लगेगा, मैं आपको जब क्वेश्चन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा, या आप अभी लिख लीजिए। एक काम कीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, पेन ऑन पेपर लीजिए एंड राइट डाउन 2 पॉइंट्स। Point number 1, if there is no break, in the graph of any function y is equal to fx,
then this is continuous throughout. This is continuous throughout. Point number 2, if there is no sharp point, या फिर इसको ऐसे लिखिए सेकंड नंबर पॉइंट को, if there is a sharp point, if there is a sharp point in the graph of the given function, in the graph of the given function, then function is not differentiable at that sharp point. Function is not differentiable at that sharp point. Point number 3, if tangent to any curve, if tangent to any curve is parallel to x-axis, if tangent to any curve is parallel to x-axis, then the slope of tangent at a particular point will be 0. Will be 0. Fourth point, if tangent to any curve, if tangent to any curve parallel to y-axis or perpendicular to x-axis, then slope of tangent will be infinity. Slope of tangent will be infinity. तो देखिए इन चारों पॉइंट को समझना ज़रूरी है. मैं चाहता तो आपको रोलेस थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस डायरेक्ट करवा देता और वो आराम से आप कर भी लेते. मैथमेटिकली न्यूमेरिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन रोलेस थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज this concept is totally associated with maxima minima concept, increasing decreasing function concept, slope of the tangent and all the things. तो देखिए मैंने आपको जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं हम. आपको पता है अगर आपसे बोला जाता है कि बताइए कि ये फंक्शन गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो मैथमेटिकली तो आपको फाइंड आउट करना आता है. मैथमेटिकली तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अगर ये तीनों इक्वल होते हैं
तो हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसे बोलते हैं, Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. In a similar manner, if you want to find a particular function is differentiable or not at a particular point, तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं, और अगर दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अदरवाइज नॉट। ऐसे होता है, इज नॉट सो? Yes. यस। लेकिन देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली क्वेश्चंस को इसलिए किया जाता है क्योंकि हम हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते। जिस तरह से एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, हर एक फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है, उसी तरीके से हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। रैंडमली मैं कुछ भी बोल दूं उसका ग्राफ थोड़ी बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। इसीलिए क्वेश्चंस को फिर मैथमेटिकली किया जाता है क्योंकि ये ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर ग्राफिकली देखें तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसे बोलेंगे? ग्राफिकली देखें तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलता जाए, कहीं से भी ब्रेक Yes, ना sir. हो, कहीं से भी ब्रेक ना हो। तो यही मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है। फर्स्ट पॉइंट कोई एक रीड कीजिए, कोई भी एक स्टूडेंट। If there is no break in the graph of any function y is equal to of x, then this is continuous throughout. करेक्ट। तो ग्राफिकली देखें तो कंटिन्यूअस फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम में, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में 4 फंक्शन के ग्राफ दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि बताइए कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो भाई प्रॉब्लम हो गई। हमारी आदत क्या है? हमारी तो आदत है मैथमेटिकली सॉल्व करने की, न्यूमेरिकली सॉल्व करने की। ग्राफिकली तो हमें पता ही नहीं है। ग्राफिकली तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। समझ Yes, रहे sir. हैं? तो देखिए सेकंड नंबर पॉइंट यही है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। जैसे ये फंक्शन है, ये किसका ग्राफ है, कुछ बता सकता है कोई? Parabola. ये पैराबोला नहीं है बेटा। पैराबोला तो ऐसे होता है। Yes, sir. हाँ, ये है y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ, है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है। Both are positive action. और ये है ओरिजिन 0 0। ठीक है। अब मैंने सेकंड पॉइंट आपको जो लिखवाया है वो ये लिखवाया है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई शार्प पॉइंट आ जाए, शार्प पॉइंट का मतलब होता है तिकोना पॉइंट, तीखा पॉइंट, पीक पॉइंट। तो यहाँ पे इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसका शार्प पॉइंट कहाँ पे है? Origin पे. 0 0। इसका शार्प पॉइंट ये वाला All है। window. मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इसका शार्प पॉइंट है। यहाँ पे ये Yes, जो sir. पैराबोला है इसका कोई शार्प पॉइंट नहीं है, इसे शार्प पॉइंट नहीं बोलते हैं, है ना? Yes, sir. Yes. तो ध्यान रखना ग्राफिकली किसी भी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर अगर शार्प बनता है, शार्प एज बनता है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। समझ में आई या नहीं आई Okay, बात? sir. Yes, sir. आगे. उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैथमेटिकली अगर आप चेक करोगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। मैंने आपको ग्राफिकली बताया ये। सर स्क्वायर ग्राफ में स्क्वायर की तरह बनते हैं ना, उसमें भी तो नहीं होगा वो डिफरेंशिएबल। स्क्वायर ग्राफ में हाँ सर स्क्वायर की तरह वो बिल्कुल वेव बिल्कुल चलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो एक अलग बात है। इस फंक्शन का ग्राफ है, इस फंक्शन में इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पर नहीं है और इस पे भी नहीं है, क्योंकि ये चारों शार्प पॉइंट है। लेकिन ये फंक्शन ये जो फंक्शन है, ये जिस भी वेरिएबल का फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि कहीं पे भी ब्रेक नहीं है।
समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. तो इनिशियल 2 पॉइंट्स आर क्लियर। Yes, sir. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आपका 12th क्लास में और 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा अगर किसी को याद हो तो। अगर मान लीजिए, मैं इस ग्राफ पे तो बाद में आऊँगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अगर मैं पूछता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो बताइए क्या होगा? स्लोप क्या होगा इसका, y इज इक्वल टू एफ एक्स का? अरे भूल गए इतनी जल्दी? फिर अभी तो y प- equal to mx. mx प्लस c। नहीं बेटा, y इज इक्वल mx. टू एम एक्स प्लस सी तो एक लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें m स्लोप होता है, लेकिन अगर मैं m इक्वल टू हाँ, क्या होता है? y equal to टेन थीटा। टेन थीटा। इसके अलावा और क्या लिखते हैं अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको पता हो तो? dy बाई डी एक्स, यही होता है। यस सर याद है। हाँ, स्लोप ऑफ द Yes, sir. टेंजेंट, यानी किसी भी फंक्शन का स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ओके, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद है तो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा? 0. 0। बिल्कुल सही है। और अगर कोई Yes, sir. लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसका स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट या 1/0, एक ही बात है। यस सर। Infinite. बिल्कुल, इनफाइनाइट या 1/0। चलिए, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब वापस मैं इस ग्राफ में आ रहा हूं। यस, ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का है। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन a से b में डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखिए, रोलेस थ्योरम का पहला स्टेटमेंट है कि फंक्शन a से b में डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पॉइंट पे आइए। फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बिल्कुल। इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल। इस इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इस इंटरवल Yes, में थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है या नहीं है? Yes, sir. ऐसा कोई भी शार्प पॉइंट थोड़ी ना इसके अंदर नहीं sir. नहीं है ना। अगर कोई शार्प पॉइंट होता तो हम बोलते कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसमें a से b के बीच में इस ग्राफ में कोई भी शार्प पॉइंट नहीं है, इसलिए ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। Yes, sir. तीसरा पॉइंट, a पर फंक्शन का वैल्यू b पे फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए, a पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो ये वाला होगा, और b पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो भी ये वाला ही होगा। सेम होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? Yes. a पर जो y का Yes, वैल्यू sir, होगा या फंक्शन का वैल्यू होगा वो f ऑफ a होगा, और जो b पे होगा वो भी यही होगा, सेम होगा। इसका मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बोलते हैं? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ c ऑफ x इन द ओपन इंटरवल a b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। देखिए, ये कैसे पता चलेगा? अब आइए ध्यान से देखिएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और इस पॉइंट को मान लो C1, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो बताइए C1 पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस पर स्लोप 0 होता है। 0। हाँ, तो Yes, ये sir. टेंजेंट है, टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है। ये C1 पॉइंट पर x इज इक्वल टू C1 पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए
फंक्शन का स्लोप c1 पॉइंट पर 0 होगा, मतलब f डैश c1 0 होगा. इज इट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ और इसे c2 पॉइंट मान लूँ, तो इस पर भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा. Yes, sir. सिमिलरली इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ और इसे c3 मान लूँ, तो यहाँ पे भी f डैश c3 0 होगा. Yes, Yes, sir. sir. All points. Yes, sir. सिमिलरली c4 पे भी 0 होगा. सिमिलरली C5 पे भी 0. ये मैंने c5 ले लिया, ये c6 ले लिया, ये c7 ले लिया, तो इन सभी पे 0 होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा लास्ट लाइन पढ़िए, अब पढ़िए इस लाइन को. देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ c ऑफ x इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0. बताइए समझ में आया नहीं आया? मतलब ये है कि इस a से b में कम से कम एक ऐसी c की वैल्यू होगी. कम से कम एक बोल रहा है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. कम से कम एक वैल्यू c की ऐसी ज़रूर होगी जिस पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा. यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए c1 पर भी 0 है, c2 पे भी 0 है, c3 पे भी 0 है, सब पे 0 है. इसीलिए मैंने बोला है एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. So this is the statement of Rolle's theorem. If these 3 points are satisfied, then there exists at least one value of c in the open interval ab such that the first order derivative of the given function at x is equal to c will be 0. Any question in the statement of Rolle's theorem? No, sir. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट समझना Sir- जरूरी है. हाँ सर थर्ड स्टेटमेंट है ना, हाँ ये f of a इक्वल टू f of b, हाँ. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है बस. क्या और कुछ नहीं. कंफ्यूजन है? सर जैसे इधर a पॉइंट है ना, x इज इक्वल टू a पर हाँ फंक्शन का वैल्यू. हाँ, हाँ. तो सर वैसे लाइन सीधी जाएगी क्या, उसी के अंदर वेव चेंज नहीं होगी? अरे ये तो ऊपर नीचे बन गया है यार, कैसी बातें कर रहे हो, मुझसे ढंग से बना नहीं. भावनाओं को समझो, शब्दों पे क्यों जा रहे हो यार? नहीं सर. ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया मुझसे, है ना? यस यस. माफ कर दिया करो यार, गलती हो गई तो. नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा था. सर मैं ये बोल रहा था कि वेव ऊपर नीचे जाती है ना. नहीं, वेव से मतलब नहीं है बेटा. देखो ये ध्यान से, इधर देखो, एक और बना रहा हूँ मैं. ये मैंने बनाया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. अब बताओ Yes, A पर sir. फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ए पे सर जो भी है इसका और B पॉइंट, पर फंक्शन का क्या वैल्यू होगा? जो ए पे है वो बराबर दिख रहे हैं. सेम, बिल्कुल सेम. यही बोलना चाह रहा हूँ, यस सर. है ना? ये ओके सर. ओके. आपके क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा आएगा कि आप ये तीनों पॉइंट्स को वेरीफाई कीजिए, और अगर ये वेरीफाई हो रहे हैं तो आप C का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए ये फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, और ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में डिफाइंड है 1 to 5 में. तो आप ये वो जो 1 to 5 इंटरवल है, इसे आप क्लोज इंटरवल 1 to 5 भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है. ये बाकी स्टेटमेंट में मत जाइए आप, बाकी स्टेटमेंट को भूल जाइए. आपका क्वेश्चन ये आएगा कि एक फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा और उसके साथ इंटरवल गिवन होगा. आपको ये बताना है कि इसमें रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो फिर C का वैल्यू क्या होगा. समझ में आया? यस सर. यस सर. ठीक है. चलिए, तो सिर्फ जो अंडरलाइन किया है उसी पे फोकस करना, बाकी स्टेटमेंट को मत देखना आप. अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम. अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स और लिखिए. बिफोर इवेल्युएटिंग दिस क्वेश्चन राइट डाउन सम मोर पॉइंट्स. पहले मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, उसके आगे लिखिए पॉइंट नंबर 5. Algebraic polynomials
simple trigonometric functions सर रिपीट करो. algebraic polynomials of any degree algebraic polynomials of any degree comma simple trigonometric functions comma simple logarithmic functions comma simple exponential functions are always continuous. सर लास्ट में क्या बोला? Simple exponential functions are continuous always continuous in the given domain. In the given domain. अच्छा, स्टेटमेंट क्या लिखवाया है मैंने, पढ़ना एक बार. Algebraic polynomials हाँ, कॉमा, of any degree, हाँ, ऑफ एनी डिग्री, कॉमा, simple trigonometric function, कॉमा, simple logarithm function, कॉमा, simple exponential function आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. are always in हाँ, the given बस domain. बस रुक जाओ. आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन द गिवन डोमेन. आर ऑलवेज continuous and differentiable in the given domain. Okay sir, yes. देखिए मैंने ये क्यों लिखवाया आपको, देखिए समस्या कहाँ पे आएगी. डायरेक्ट हो जाएगा इससे. हाँ, इससे डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका कारण है. देखिए रोलेस थ्योरम को अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको 3 पॉइंट वेरीफाई करने पड़ेंगे. पहला पॉइंट, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए गिवन इंटरवल में. ये अनम्यूट किसका है, म्यूट कीजिए प्लीज़ अपने आप को, जो जिसका भी अनम्यूट है. आवाज़ आ रही है पीछे से. ठीक है. हाँ, तो रोलेस थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट ये होता है कि द फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस इन द गिवन इंटरवल. अब प्रॉब्लम यह है कि जो इंटरवल है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं, इंटरवल 1 to 5 है. अब बेटा इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. अब इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब यह है कि इस इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. तो क्या आप इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करने बैठोगे? नो सर. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पूरे के पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, और पूरे के पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होने का मतलब यह है कि उसके हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब यह है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. दूसरा ऑप्शन, अगर आप बोलोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक तो नहीं कर सकते मैथमेटिकली, लेकिन ग्राफ बना के पता कर सकते हैं. लेकिन बेटा यहाँ पे चलो इसका तो ग्राफ बन जाएगा, लेकिन अगर कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन या साइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कोई डिफिकल्ट फंक्शन आ गया तो उसका तो ग्राफ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राफ हर फंक्शन का नहीं बन सकता. इसीलिए तो उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं हम लोग. तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम आने वाली है. दूसरा पॉइंट ये है रोलेस थ्योरम का कि फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए. वापस वही प्रॉब्लम आ गई, उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि उसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए. लेकिन उस इंटरवल में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है. और ग्राफ बना के शार्प पॉइंट कितनी जगह चेक करेंगे, अगर ग्राफ नहीं बनाना आता तो फिर क्या करेंगे. दैट इज द प्रॉब्लम.
तो इसके लिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखवाया है कि ध्यान रखना, कोई भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल आता है किसी भी डिग्री का, चाहे वो 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, 4 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, किसी भी डिग्री का एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल आता है, या कोई सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, या कोई सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो ये सभी, इन सबको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी गिवन डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes. ठीक है, चलिए, अब आपको एक फंक्शन गिवन है, उसके डोमेन या इंटरवल गिवन है, आपको पहले रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है। ओके, तो आप लिखिए इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट, एक बार लिख लीजिए क्योंकि बार बार फिर हर क्वेश्चन में वही चीज़ लिखनी है। तो ये क्वेश्चन तो आप यहां से देख लेना, इसका सोल्यूशन लिखिए आप, पहला पॉइंट। सर 3 आएगा आंसर। बेटा अभी बाद में बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, f इज, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल 1 to 5 एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 1 to 5। डायरेक्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? यस सर। वो इसीलिए लिखा हुआ है Yes, sir. क्योंकि ये फंक्शन जो है वो 2 डिग्री का एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, और मैंने आपको बताया है किसी भी डिग्री का एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल हो, वो गिवन डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो आप लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए, सिंस गिवन फंक्शन, मैं यहां लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सिंस गिवन फंक्शन is an algebraic polynomial of degree 2, therefore function is continuous and differentiable in the interval 1 to 5। ऐसे करना है आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Yes, sir. ओके, अब देखिए पॉइंट 1 सेटिस्फाई हो गया हमारा रोलेस थ्योरम का, पॉइंट 2 सेटिस्फाई हो गया, पॉइंट 3 पे आते हैं। पॉइंट 3 ये कहता है रोलेस थ्योरम का कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरवल है 1 to 5, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ए का क्या वैल्यू होगा? 1, और बी का वैल्यू क्या है? 5, 5. क्योंकि ये इंटरवल ए टू बी है, 1 to 5 है। तो आप फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकाल लीजिए और फंक्शन का वैल्यू 5 पे निकाल लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, ये लिखा हुआ भी है, फंक्शन का वैल्यू 1 पर और 5 पर सेम आएगा, -1। Yes, sir. -1. तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं रोलेस थ्योरम के। Yes. ऐसे करना है आपको, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसके बाद आप लिखेंगे नाउ, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए जो प्रीवियस स्टेटमेंट में भी है। नाउ अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one value of c such that f dash c is equal to 0। सर देयर एग्जिस्ट, ये लिखा हुआ है, देखो अंडरलाइन कर दिया मैंने। देन देयर एग्जिस्ट
at least one value of c such that f dash c is equal to 0. बस अब सिंपल है, आपको c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले f डैश x फाइंड आउट कर लीजिए। हाँ, f डैश x फाइंड आउट कर लीजिए, -2x + 6। फिर आप f डैश c कर लीजिए, x की वैल्यू c रख दीजिए, -2c + 6। और फिर f डैश c को 0 पुट कर दीजिए, तो आपका c का वैल्यू आ जाएगा 3। ध्यान रखना c के एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, c1 c2 c3 c4 c5 ग्राफ के थ्रू बताया था मैंने आपको। एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c का मतलब ये होता है कि कम से कम एक वैल्यू आएगी, उससे ज़्यादा भी आ सकती है। और ध्यान रखना, अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है c की, तो उन सबको चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो सारी वैल्यूज़ इस इंटरवल में आनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर कोई भी c की वैल्यू इस इंटरवल के बाहर जा रही है, तो उस c की वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट ही है। आप देखो, देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ c, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c इन द गिवन इंटरवल a to b such that f dash c is equal to 0। तो ध्यान रखना, c की वैल्यू जो है वो ही एक्सेप्टेबल है जो इस इंटरवल के अंदर हो। सर यस सर, ये 3 6 ये c की जगह 0 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 कैसे लिखा? c की जगह 0 कहाँ रखा मैंने? नहीं, ऐसे रखेंगे ना, है c की जगह क्या रखेंगे सर यहाँ पे फंक्शन इश्यू वाले में? c की जगह 0 कहाँ रखेंगे? किसने बोला 0 0 रखेंगे? ये आप ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, ये देखो, इसको देखो अब ध्यान से, क्या है ये? f डैश c की जगह रखे 0। f डैश c को 0 करेंगे आप, तो f डैश c को 0 कर दिया मैंने। यस सर। तो यहाँ पे c का वैल्यू 3 आ रहा है, तो ये इस इंटरवल में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये Yes, आंसर yes. आपका करेक्ट है, Yes. बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ये। तो ये सर आपका लेकिन दो वैल्यू क्यों नहीं आई सॉल्व करने पर? किसने बोला 2 वैल्यू आएगी? सर क्यों नहीं आई सॉल्व करने पर? यार ये क्या क्वेश्चन हुआ? मैंने क्या बोला आपको? यार ऐसे बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछते हो यार। ये क्या लिखा सर हुआ है? जैसे ये क्वाड्रिक, ये क्या लिखा हुआ है? सर वो तो समझ गया, जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन होती है ना, हाँ जिसकी पावर 2 होती है तो उसकी वैल्यू भी 2 आती है ना, फैक्टराइज करते थे जब, उसके हाँ, अंदर ऐसा आता था। तो तो इसमें क्यों नहीं आई ये पूछ रहा हूँ सर। बेटा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ सॉल्व कर रहे हो? ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये रही, ध्यान से देखो। आप क्वाड्रेटिक कहाँ सॉल्व कर रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फंक्शन की है बेटा, आप सॉल्व किसको कर रहे हो? ओके f dash सर। x. आप एफ डैश एक्स को सॉल्व कर रहे हो, एफ एक्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो आप। हाँ सर यही पूछना था। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी अवेलेबल हो जाएगा। सर पीपीटी तो आपने भेज ही दिया। हाँ, ये पीपीटी उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं रोलेस थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और लेग्रांजेस थ्योरम भी करवाऊंगा। रोलेस थ्योरम आप अच्छे से दोबारा पढ़ना, ठीक है, मेरी पीपीटी से या पीडीएफ जो भी मैंने उसमें अपलोड किया है उससे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं लेकिन इसको ग्राफिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क। कल तो सर आपका ऑफलाइन क्लास है। यस, any question anybody wants to ask? नो सर। ओके। Okay, if you don't have any doubt then I think we should leave the class. So thank you very much all of you, have a good day, thank you. थैंक यू सर। बाय सर। Okay, thank you, bye bye, have a good day. थैंक यू सर। बाय सर।